Hello everyone. I hope you all are going through videos and the learning content that we are providing to you. Previous video we have covered HTML. We are left with HTML forms and frame that we'll do in the school when the school will reopen. Today I have come with your chapter number 7 of class 10. Chapter name is साइबर एथिक्स. एज यू नो नाउ डेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कितना इम्पॉर्टेंट रोल है everyone's life में. As you can say, with a single click only you are able to get the answers of all the queries whatever we want to ask. And what is our responsibility as we are getting facilities, as we are getting opportunities, but हमारी क्या responsibility है इस केस में? We have to use computer ethics. Ethically we have to use information technology so that we can use IT in a responsible way. So in this video I am going to cover ethics, what is computer ethics, what is netiquettes, then what are the types of e-commerce frauds, then what is secure transmission, then we are going to discuss techniques that are used for secure data transmission, where we are going to discuss authenticity authorization, then we are going to discuss cryptography, then passwords, then pin numbers. These all content we are going to cover in this video. So let us start with the chapter. Let us start with the chapter number 7 of class 10. Chapter name is cyber ethics. So let us start. First one we have, what is ethic? What do you understand by the term ethics? As you can see, ethics is a set of moral principles that governs the behavior of a group or individual. Means it is a system or it is a set of moral principle जो डिफ्रेंशिएट करता है इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर को. मीन्स वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल. सेकेंड हम बात करेंगे कंप्यूटर एथिक्स. कंप्यूटर एथिक्स मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट रेगुलेट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. दैट मीन्स इट विल यूज द कोड ऑफ कंडक्ट to use information technology in a responsible way. It means जो ethics है that define behavior of a group or individual whether it is good or bad. और second है computer ethics that define the use of information technology in responsible way. Means जो कंप्यूटर एथिक्स है वो आपको सेट ऑफ रूल्स देता है जिसकी हेल्प से आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो while you are using information technology in a responsible way. So therefore all the computer user have to follow computer ethics if they want to use information technology. Next हम बात करेंगे netiquettes. As you know, netiquettes is the combination of two words net plus etiquettes. Net is internet, etiquette means good manners. It means netiquettes will define a set of rules that control the behavior of a user who is communicating online. और जो communication हो रहा है that can be with the help of email, forms, blogs and social networking sites. Next we'll talk about guidelines while we are communicating online. We have to follow some guidelines. First one we have use proper salutation and signature. Means whenever we are communicating with anyone online we have to greet that person. Means whenever we are typing some messages we have to begin your message with the salutation and end it with your name or signature. आपको जो मैसेज स्टार्ट करना है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सैल्यूटेशन दैट मीन्स ग्रीटिंग एंड द एंड इट विद योर नेम एंड सिग्नेचर. सेकेंड हम बात करेंगे सब्जेक्ट लाइन. Whenever you are including a subject online you have to see your subject should be descriptive. Means it will convey the purpose of your message. Means the other person जिसको भी आप मेल कर रहे हो that person will understand regarding what you have sent the message. Your message subject should be clear in the message. थर्ड आता है हमारे पास कीप योर मैसेज कंसाइज. मीन्स आपका जो मैसेज है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए.
सो दैट जो अदर पर्सन है वो क्विकली से उसको रीड्स कर सके। थर्ड वन है हमारे पास बी केयरफुल एंड अवॉइड सार्केज्म। मीन्स whatever you are doing, whatever message you are doing online, you have to see, you will not put any kind of insulting comment or sarcastic comment in your message. Means you have to respect other person view also. Do not post any kind of insulting comment or sarcastic comment in your messages. Next we have respect others privacy. Means do not read or forward another person mail without seeking his permission. किसी की परमिशन के बिना आपको मैसेज को ना ही फॉरवर्ड करना है ना ही रीड करना है। लास्ट वी हैव obey copyright laws. Means do not copy or post someone content from the internet and claim it as your own. मतलब आपको अपने नेम से कोई भी किसी भी पर्सन का कंटेंट आपको अपने नेम से पब्लिश नहीं करना है। You have to follow copyright laws. Next is do not indulge in spamming. Means as you know what is spamming. Spamming means you are getting unwanted advertisements and messages. जो आपको अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट और मैसेजेस आते हैं दैट इज नोन एज स्पैमिंग। तो स्पैमिंग मीन्स रेफर टू फ्लडिंग द यूजर इनबॉक्स विद अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड मैसेजेस। नेवर सेंड फॉरवर्ड और रिस्पॉन्ड टू सच स्पैम मैसेजेस। आपको जो ये मैसेजेस आते हैं स्पैम मैसेजेस इनको ना ही फॉरवर्ड करना है ना ही सेंड करना है ना ही रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। मीन्स जब भी आपको कुछ भी पोस्ट करना है मैसेज यू हैव टू चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर बिफोर पोस्टिंग योर मैसेज एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग शुड ऑलवेज मेक सेंस। You have to be polite and courteous to everyone. Next is use appropriate emoticons. Means whenever you want to send any kind of emotions, means you want to convey any kind of emotions, you have to use emoticons. Next is do not reveal sensitive information online. Means you are not supposed to share your ATM pin, credit card number, local number with anyone through email, message or any other mean over the internet. आप किसी के साथ भी अपना ATM पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर, लोकल नंबर किसी से शेयर नहीं करना है, ना ही मैसेज पे ना ही किसी मेल के थ्रू। And last is be tolerant and careful. Means every person has their own views regarding any matter. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई आप आंसर रिप्लाई कर रहे हो यू हैव टू सी, यू हैव टू हियर एंड रिस्पेक्ट अदर पर्सन। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स। एज यू नो ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच रेफर्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट। मीन्स आज के टाइम में इंटरनेट ने आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं कि आप घर पे बैठे कुछ भी खरीद सकते हो। दैट यू नो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। जो आपका ई कॉमर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मीन्स आप कोई भी चीज़ घर पे बैठे कुछ भी खरीदना चाहते हो यू कैन बाय फ्रॉम होम। while you are buying anything, while you are selling anything, each one has to associate with the ethical conduct. Means सबको ethical conduct follow करना होगा so that कि no one is cheated or tricked in this system. So we have to follow good ethics. इससे क्या होगा देखो, डूइंग बिजनेस एथिकली नॉट ओनली हेल्प कंपनी, इससे कंपनी की हेल्प नहीं होगी बट ऑल्सो इट्स स्टेक होल्डर लाइक कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड सबको ही बेनिफिट होगा इस चीज़ से। सो इट विल इंक्रीज ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड आप सबने सुना होगा, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज failure to practice ethical code of conduct constitute fraud. Means purposefully misinterpreting fact to deceive another person for personal gain. It means कि purposefully आपने किसी की इंफॉर्मेशन को मिसइंटरप्रेट किया, मिसरिप्रेजेंट किया सो दैट कि आपको अपना बेनिफिट हो सके, चाहे वो मनी का बेनिफिट है या किसी गुड्स का बेनिफिट है या कोई इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजंस फॉर इंक्रीज इन ऑनलाइन फ्रॉड। जो आज के टाइम में फ्रॉड इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? आपने सुना होगा कि ऑनलाइन में कई समटाइम इट हैपन्स कि आपका
जो आपने कुछ मंगवाया कुछ और जाता है, दैट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड। आपका आईडी हैक हो जाता है या आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, दैट ऑल्स कम्स अंडर ऑनलाइन फ्रॉड। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे एम्बिग्यूटी की। तो जो आप इसमें एम्बिग्यूटी मीन्स जो ट्रांजेक्शन है वो फेस टू फेस नहीं होती है, आपको भी पता है। जो आइडेंटिटी होती है पार्टीज की वो इजीली हम कंसील कर सकते हैं, इज़ हार्ड टू वेरीफाई, और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सेम नेम 2 पर्सन रजिस्टर कर सकते हैं, तो दैट इज एम्बिग्यूटी। सेकेंड वन वी हैव हैकिंग। एज यू नो इट इज़ ईजी फॉर हैकर्स टू स्टील इंफॉर्मेशन। जो हैकर्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टील करना आज के टाइम में बहुत ही ईजी है फ्रॉम ऑनलाइन ब्लैक मार्केट। लास्ट वन वी हैव लीगल लूप होल। दैट मीन्स जो द लॉ हैज़ बीन अनेबल टू कीप अप विद द ऑनलाइन क्राइम्स, so it is relatively difficult to track, identify and prove the crime and the identity of the criminal। क्योंकि जब भी कोई भी ऑनलाइन क्राइम हो रहा है तो वो डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना, क्रिमिनल की आइडेंटिटी फाइंड आउट करना, किसने किया, कहाँ से हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ड्यू टू दीज रीजन्स नाउअडेज द ऑनलाइन फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड्स। फर्स्ट वन वी हैव मिसलीड product listing. Second is selling counterfeit product. Third one unfriendly return policy. Fourth fraudulent payment, and last one we have charity fraud. फर्स्ट वन इज मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। समटाइम इट हैपन्स, आपने देखा होगा कि दिखाया कुछ और होता है वेबसाइट पे और जब हम घर पे प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो कुछ और रिसीव होता है। मीन्स जो वीडियो और जो फीचर्स हमें ऑनलाइन दिखाए जाते हैं दैट मे बी डिफरेंट जब हम प्रोडक्ट को घर पे एक्चुअली टच करके देखते हैं, बिकॉज ऑनलाइन हम उसको टच नहीं कर सकते। ड्यू टू दैट ऑल्सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड। दिस मीन्स जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है वो डिफरेंट होती है और इनएक्यूरेट होती है एन अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट घर पे आता है एज कंपेयर टू दैट। सेकेंड वन वी हैव सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट। इट मीन्स some seller may utilize third party suppliers. What happen when they will include third party supplier? जो third party suppliers होते हैं वो sometime ये करते हैं, जो आपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनको दिए हैं वो किसी और ब्रांड नेम से उसको पब्लिश कर देते हैं विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द ब्रांड ऑनर। इससे क्या होता है, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी और ब्रांड के नेम से पब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। सम टाइम इट हैपन्स कि जो सेलर्स होते हैं वो नो रिफंड नो रिटर्न की पॉलिसी अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको डिफेक्टेड आइटम या कोई भी आपकी अनसुटेबल आइटम आपके पास आ जाती है तो आप उसको रिफंड नहीं मिलता है आपको उसके एक्सचेंज में, ना ही कोई रिटर्न में आप उस आइटम को चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉडलेंट पेमेंट। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, जो स्टोलन क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन से पेमेंट्स होती हैं उसको फ्रॉडलेंट पेमेंट्स बोलते हैं हम। एंड लास्ट वन वी हैव चैरिटी फ्रॉड। चैरिटी फ्रॉड क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम जहाँ पे विक्टिम विलिंगली गिव द मनी अंडर फॉल्स प्रीटेंस। Because in charity fraud you think you are giving money to any kind of research organization that may be cancer or AIDS, but actually what is happening, आप किसी false pretense को समझ के आप पेमेंट कर देते हो, that is a fraud. First one we have shop securely, means whenever you are purchasing anything you have to see you are using a secured internet connection. कोई public wifi आपको use नहीं करना है whenever you are going to buy anything. Second one we have update antivirus software. Keep your antivirus software up to date so that you can protect yourself from any kind of virus, spyware, adware and malware. Third one we have purchase only from secured e-commerce merchants. That means ensure that e-commerce website that you are using, they are using encryption protocol certificate like TLC and SSL, and you have to check that lock icon is present in the address bar and the URL has an HTTPS before entering payment detail into any website. Next we have read the website refund policy.
मीन्स वेन एवर यू आर गोइंग टू बाई एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आपको देखना होगा कि उसकी रिफंड पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है. अगर नहीं है देन यू हैव टू सी. अगर आपका कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है या नॉन सुटेबल प्रोडक्ट आ जाता है देन हाउ यू विल डील विद इट. यू हैव टू सी द डिटेल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द website in detail. Last one we have do a background check on charity organization. That means you have to ensure authenticity and history of the charity organization before making any charity contribution. That means आपको चेक करना होगा जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है whether that charity organization is valid or not. You have to check the authenticity and all the history of that organization, then you can make any kind of charity contribution. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेसी. व्हाट इज प्राइवेसी? प्राइवेसी इज द राइट टू कंट्रोल व्हाट हैपन्स विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. एज यू नो कि प्राइवेसी का मीनिंग क्या होता है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करना. मीन्स हु इज एबल टू एक्सेस योर इंफॉर्मेशन और अप टू व्हाट एक्सटेंट that person is allowed to access your information. As you can say, it is defined as claim of individual, group or institution to determine when, how and to what extent information pertaining to them could be communicating to other. Means अगर आपकी information किसी person या किसी group या किसी institution के पास है तो वो when, how and to what, मतलब वो कब, कितनी और किस एक्सटेंट तक आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सनस तक कम्युनिकेट कर सकता है. दिस इज प्राइवेसी. एज यू नो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का लॉस होता है. दैट इज ड्यू टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. एज यू नो जो ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस हो रहा है वो अफेक्ट करता है प्राइवेसी राइट्स को और पर्सनल डेटा ऑफ अ person को. Means whenever you are doing any kind of online transaction you expose a lot of your personal and financial information. Means आपकी like you can say आपका कार्ड नंबर है या फिर आपका पैन नंबर है या फिर आपका अकाउंट नंबर है that can be tracked. एथिकली क्या होता है कि जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं उन्होंने क्लियरली अपनी प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन की होती है कि हाउ इट यूजेस एंड शेयर द गैदर्ड कस्टमर डेटा और वेदर अ कस्टमर कैन चूज टू कीप हिज इंफॉर्मेशन प्राइवेट और नॉट. दैट मीन्स वेन एवर यू आर गोइंग टू ऑर्डर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जब कभी भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं यू हैव टू सी कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर एंटरिंग यू हैव टू मेक इट प्राइवेसी. मीन्स यू हैव टू मेक इट प्राइवेट सो नोबडी कैन access it, nobody can read it. Next हम बात करेंगे to safeguard your privacy. That means successful security solution require a convergence of three components. First one we have technology, second one we have people and third one we have processes. The following ways can help you limit your data exposure online. ये जो आपकी methods हैं, तीन components हैं, ये आपकी help करेंगे how to limit your personal data exposure when you are doing online transaction. First one we have people. Do not share your sensitive financial information like credit card number, personal verification detail, OTP etc. with anyone, especially on the phone. Means you are not supposed to share your any detail with anyone. Second we have processes. Means you have to check privacy policy of online merchant. जो online merchant है आपको उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करनी है बिफोर साइनिंग अप और मेकिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन. सेकेंड यू हैव टू सिलेक्ट प्राइवेट क्लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन रिटेलर टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अदर बिजनेस. मीन्स आपको जो प्राइवेसी क्लॉज होगा उसमें रिस्ट्रिक्शन डालनी होगी कि दे आर नॉट सपोज टू शेयर योर पर्सनल डिटेल विद एनी अदर बिजनेसेस. थर्ड आता है हमारे पास रीड द रिव्यूज ऑफ ऑनलाइन कस्टमर ऑफ द साइट बिफोर मेकिंग एनी परचेज. आपको कोई कुछ भी परचेज करना है उससे पहले आपको रीड करना है रिव्यू ऑफ द ऑनलाइन कस्टमर. जो जो कस्टमर उस पर रिव्यूज़ देते हैं लाइक किसी ने कोई प्रोडक्ट बाय किया होगा सेम तो उनके रिव्यूज़ आए होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर. यू हैव टू सी दैट बिफोर गोइंग टू मेक ट्रांजेक्शन. थर्ड नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में फर्स्ट थिंग है ऑलवेज सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स द पासवर्ड शुड कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स.
मीन्स अगर आपका पासवर्ड इजी होगा तो कोई भी उसको ट्रेस कर सकता है, कोई भी उसको क्रैक कर सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप जो वेबसाइट एंटर किया है, यू हैव टू सी जो URL है वेबसाइट का, उसके अंदर HTTPS होना चाहिए एंड पैडलॉक आइकन होना चाहिए नेक्स्ट टू इट, जिससे ये पता चलेगा जो वेबसाइट है दैट इज सिक्योर। देन यू कैन एंटर योर पेमेंट डिटेल इनटू दैट साइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रेगुलरली इंस्टॉल सेफ्टी पैचेस टू सेफगार्ड योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इलीगल एक्सेस टू बैंक अकाउंट नंबर्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है और कोई आपको सेफ्टी पैचेस को इंस्टॉल करना है सो दैट सेफगार्ड योर कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है उससे आप सेफगार्ड कर सकते हो, और जो इलीगल एक्सेस है बैंक अकाउंट नंबर्स को एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को, उससे भी आप सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट, नेवर यूज ओपन अप कनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन। मीन्स अगर आप ओपन अप कनेक्शन यूज करेंगे, इससे आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं एनीवन कैन ट्रेस दैट। You have to use only secure Wi-Fi or mobile data connection for making any online transactions. We have cyber theft. Cyber theft is stealing your personal detail like your password, bank detail or your credit card detail from your computer or from mobile phone, and they will misuse this to harm the user. एज यू नो, जब भी आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप अपनी पर्सनल डिटेल, अपने कार्ड डिटेल एंटर करते हैं। दैट कैन बी स्टोलन बाय एनीवन एंड दैट कैन बी मिसयूज्ड बाय थीव्स ऑन द इंटरनेट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इवन हम बात करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट की। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? देखो, आइडेंटिटी थेफ्ट में समवन इज यूजिंग योर आइडेंटिटी टू मेक अ क्राइम, मतलब कोई भी क्राइम करने के लिए आपकी आइडेंटिटी को यूज़ किया जा रहा है, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। इट इज़ अ स्कैम और अ क्राइम दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ योर पर्सनल डेटा सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। मीन्स ये ऐसा क्राइम और स्कैम होता है जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल को हैक किया जाता है, चाहे वो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है या क्रेडिट कार्ड डिटेल है, जो आपकी बिना परमिशन के फ्रॉड कमिट करने के लिए और किसी और क्राइम को कमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। बात करेंगे सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। एज यू नो, सिक्योर मीन्स वी हैव टू सेंड अ डेटा इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट so that it should be protected from cyber and identity theft. Means we have to protect our data so that no one can access it, no one can hack it. That is known as secure data transmission. हमें अपने डेटा को इस तरह से सेंड करना है कि कोई भी उसको हैक ना कर सके और ना ही कोई उसका मिस यूज कर सके। Discuss techniques that are used for secure data transmission. हम बात करेंगे authentication and authorization. As you can see the picture, authentication means it will validate whether you are a valid user or not. And second one, authorization means what permission do you have. If you are going to access any data, what kind of permission is given to you by the system. You can say in authentication, whenever you are going to enter into your security system, then your identity has to be verified, and this is called authentication. As you can say in authentication, username or password has to be entered by the user to enter into the secure system. And if we will talk about authorization, authorization means कि what kind of permission do you have to use the security system. जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या परमिशंस आपको दी गई हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आप क्या इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस. आई थिंक दिस इज क्लियर. वी हैव क्रिप्टोग्राफी. एज यू नो, जब भी आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा सेंड करना होता है नेटवर्क के ऊपर, वो भी सिक्योर नेटवर्क के ऊपर, यू हैव टू इंक्रिप्ट बिफोर सेंडिंग द डेटा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज encryption. Encryption means you have to process your data or you have to transform your data into unreadable code. Means कोई और आपके कोड को रीड ना कर सके. That is known as encryption. As you can say, whenever you are going to send any confidential data over a network, you have to encrypt your data or you have to code your data before transmission of the data. So
मीन्स यू आर सपोज टू ट्रांसफॉर्म योर डेटा इनटू अनरीडेबल कोड. आपको अपने जो डेटा को अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट करना है सो दैट नो वन कैन रीड इट, नो वन कैन हैक इट. एंड द मोस्ट कॉमन जो ईमेल इंक्रिप्शन का मेथड होता है दैट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी. It protect communication between the server and the user. As you can say, it work by using two different cryptographic keys. As you can see here, we are using two keys, private and public key for this particular communication between the server and the user. Next हम बात करेंगे HTTPS protocol. What does it mean? What is the use of this protocol? As you know, जो HTTPS होता है वो encrypt करता है your information और data को using TLS certificate और secure socket layer certificate. And what this certificate will do? This certificate will create a encrypted connection between the server and the browser. जिससे क्या होगा? It will secure your data transfer from server to browser और it will protect users information from being hacked or stolen by criminals. इससे क्या होगा? जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी हैकर और कोई भी क्रिमिनल उसको स्टील नहीं कर सकता. नेक्स्ट वी हैव password and pin numbers. You are not supposed to share your passwords and pin number with unauthorized personnel under any circumstances. किसी भी कंडीशन पे आपको अपने पासवर्ड और पिन नंबर शेयर नहीं करने हैं. Last one we have antivirus. Antivirus, as you know, these are the computer program which identify, prevent and remove viruses from our computer, and it will update your computer with the latest version of antivirus program to detect any kind of viruses in the system. So this is all about today's video. What content we have covered today, you have to just go through it. We have covered commerce, e-commerce, we have discussed types of fraud, we have discussed privacy, we have discussed that last one, secure data transmission, and we have discussed different techniques that are used for secure data transmission. Remaining part of the chapter we'll cover in the next video. Thank you.